اور اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی، تو مہنگائی نے غریب عوام کو پریشان کر دیا ہے۔ پیاز 80، لہسن 550 اور ادرک 1100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ سیب 450 فی کلو میں بکنے لگے ہیں اور کیلا درجہ اول 220، کیلا درجہ دوم 180 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو سرکاری ریٹ جاری کی گئی ہے سبزیوں کی، اس میں 12 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ ٹماٹر کی قیمتیں جو ہیں آج دوسرے روز کی بڑھائی گئی ہیں۔ ٹماٹر 10 روپے مزید بڑھا کر 130 روپے فی کلو سرکاری ریٹ میں مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا ٹماٹر جو ہے 160 سے 180 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن کی قیمت میں بھی 10 روپے کا اضافہ کیا گیا، 360 روپے فی کلو سرکاری ریٹ میں آج قیمت مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں لہسن کی فروخت جو ہے 550 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ دیگر سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس میں لیمو 5 روپے مہنگا کر کے 160 روپے مقرر کیا گیا۔ مارکیٹ میں لیمو جو ہے 180 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹنڈا دیسی 10 روپے اضافے کے بعد 110 روپے مقرر کیے گئے ہیں، مارکیٹ میں 140 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بیگن 5 روپے مہنگا کر کے 125 روپے مقرر کیا گیا ہے، لیکن مارکیٹ میں بیگن جو ہے 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کھیرا 10 روپے مہنگا کر کے 70 روپے مقرر کیا گیا، مارکیٹ میں درجہ اول کا کھیرا جو ہے 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کریلے 10 روپے مہنگے کر کے 90 روپے مقرر کیے گئے، مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو تک کریلوں کی فروخت کی جا رہی ہے۔ پالک 7 روپے اضافے کے بعد 90 روپے 60 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 90 سے 100 روپے فی کلو تک پالک کی فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو بھنڈی ہے وہ 100 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے سرکاری ریٹ میں، لیکن مارکیٹ میں 140 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ 12 روپے اضافے کے بعد 200 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، مارکیٹ میں شملہ مرچ 280 سے 300 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اروی 15 روپے مہنگی کر کے 115 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں اروی 170 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ مٹر 10 روپے مہنگے کر کے 260 روپے مقرر کیے گئے ہیں، مارکیٹ میں مٹر جو ہے 400 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جیا توری 5 روپے اضافے کے بعد 90 روپے مقرر کی گئی ہے، مارکیٹ میں 130 سے 140 روپے فی کلو تک جیا توری کی فروخت کی جا رہی ہے۔ پھلوں کی سرکاری ریٹ میں سیب ایرانی 345 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، مارکیٹ میں 450 روپے فی کلو تک سیب ایرانی فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 160 روپے فی درجن مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 220 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ناشپاتی 150 روپے فی کلو مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 220 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ انگور 265 روپے سرکاری ریٹ میں آج مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں 450 روپے فی کلو تک انگور کی فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آم 165 کے برعکس 260 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری ناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ مہنگی بجلی کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر میں 281 روپے 51 پیسے اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف ڈسٹریبیوٹرز اور ایل پی جی دکانداروں نے جزوی ہڑتال کر دی ہے۔ مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کے بعد ایل پی جی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ ایل پی جی کے 11.8 کلو کے گھریلو سلنڈر میں 281 روپے 51 پیسے اضافہ ہو گیا۔ اوگرا کی جانب سے ایک ماہ کے لیے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2373 روپے 64 پیسے مقرر کر دی گئی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 23 روپے 86 پیسے کا اضافہ۔ ایل پی جی کی فی کلو نئی قیمت 201 روپے 15 پیسے ہو گئی۔ مارکیٹ سے شہری 201 کی بجائے 250 روپے فی کلو ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ شہری کہتے ہیں ایل پی جی پہلے ہی مہنگی ملتی تھی، اوپر سے مزید اضافے سے مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ اب تو گھر میں بھی کھانا پکانا ناممکن ہو گیا۔ گورنمنٹ کہتی ہے 170 روپے ہمارا ریٹ ہے پلانٹ پہ، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا جو اپنا ریٹ ہے اس ریٹ پہ یہاں کوئی بھی نہیں دے رہا۔ ہر بندے نے اپنے ریٹ لگایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں لینی ہے لے لیں، نہیں لینی تو جائیں۔ 1500 1600 کمائی دا تے شام نو گھر جائیدا 2 کلو 3 کلو آٹا لਈਦਾ، ٹھیک ہے، 400-500 ਦਾ ਕੋਈ 200-300 ਦਾ ਘਿਓ ਤੇ ਚੀਨੀ ਚੂਨੀ ਦੁੱਧ ਲਈਦਾ، ਦੁੱਧ ਲੈ کے جائیے، سویرے اٹھی دا 100 روپیہ گیس سے ملتا ہے۔ دوسری جانب ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف ڈسٹریبیوٹرز اور ایل پی جی دکانداروں نے جزوی ہڑتال کی۔ دکانداروں نے ایل پی جی مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز کے چیئرمین عرفان کھوکھر کہتے ہیں حکومت مافیا کو لگام ڈالے ورنہ 5 اور 6 اگست کو مکمل ہڑتال کریں گے۔ جب تک طاقتور مافیا کو لگام نہیں ڈالیں گے قیمتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، لہٰذا آج ہم سٹرائک جو 12 بجے تک علامتی ہڑتال تھی وہ ختم کر رہے ہیں، اور یہ میسج حکومت کے لیے، حکومت کے خلاف سٹرائک نہیں، یہ گیس مافیا کے خلاف ہے، اور 5 اور 6 اگست کو پورے ملک میں دم دم مسئلہ اندر ہوگا۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ پلانٹس پر ڈیلرز کو اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق رسید جاری کی جائے۔ کیمرامین صدام حسین کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔
बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफा कारोबारी तबके के लिए गले का फंदा बनने लगा। कहते हैं पहले ही हर चीज़ महंगी होने की वजह से कारोबार नहीं, किराए और अखराजात निकालना मुश्किल है। ऊपर से बिजली के बिल ने कमर तोड़ दी है। देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई का चेन दिन ब दिन बेकाबू होने लगा। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा कारोबारी तबके के लिए गले का फंदा बनने लगा। शहर की मार्केट्स और बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने का खदशा। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने वजीर आजम से रिलीफ की अपील कर दी। चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल नईम मीर कहते हैं बिजली के बिल अदा करना मुहाल हो गया। ताजर दोहरी मुसीबत में मुब्तला हैं। घर और दुकान के बिजली के बिल अदा करने के लिए रकम मुयस्सर नहीं रही। बिजली की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि घरेलू इस्तेमाल के सार्फिन और कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करने वाले ताजर दोनों ही परेशान हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस अहम तरीन मसले पर न सिर्फ आप नोटिस लें बल्कि ताजर की आदत को खास तौर पे एतमाद में लें। हॉल रोड के दुकानदारों का कहना था कि पहले ही हर चीज महंगी होने की वजह से कारोबार नहीं, किराए और अखराजात निकालना मुश्किल है। ऊपर से बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी। बड़ा ही ताजरों के लिए और अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। गवर्नमेंट को कम से कम बिजलियों के रेट जो है ना वो, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है कि आम इंसान, गरीब से गरीब इंसान जो है ना वो इस्तेमाल करता है। ताजरों का कहना था कि वज़ीर आज़म बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेंगे तो ही दुकानदार तबके और आवाम को सुख का सांस मिलेगा। मार्केट में चीनी के निर्ख मुसलसल आउट ऑफ कंट्रोल। शहर भर में चीनी कम से कम 150 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही। पंजाब हुकूमत ने चीनी रेट पर इत्फाक राय के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से बातचीत करने का फैसला कर लिया है। देखिए जाहिद आबिद की रिपोर्ट। चीनी की मिठास कड़वी होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज, चीनी की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। वफाकी हुकूमत ने चीनी का निर्ख 98 रुपये 82 पैसे मुकर्रर किया है। मार्केट में चीनी कम अज़ कम 150 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही है। चंद हफ्ते से चीनी के निर्ख मुसलसल तेज़ हैं। होलसेल मार्केट में चीनी के निर्ख 142 रुपये फ़ी किलो तक हैं। चीनी का एक्स मिल्स रेट 137 रुपये फ़ी किलो तक है। शहरियों का कहना है कि शय ज़रूरिया के निर्ख हुकूमती कंट्रोल में होने चाहिए। भाई चीनी बहुत महंगा है और कोई कंट्रोल नहीं है। मेहरबानी करके ये मौजूदा हुकूमत क्या ये ज़रा कंट्रोल हो जाए और एक रेट मुकर्रर हो जाए, उस पर इशू हो जाए। चीनी कोई भी आए, हुकूमत कोई भी हो, लेकिन हमारा ताल्लुक है आटा, चीनी, दालें वगैरह, इनके साथ हमारा ताल्लुक है, तो ये हमें कम से कम सस्ती मिलनी चाहिए। मार्केट ज़राए के मुताबिक अदालती मामलात की वजह से चीनी के निर्खों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ताहम पंजाब हुकूमत चीनी की कीमत के तयन के लिए मुतहर्रिक हो गई है। मंगल को केन कमिश्नर पंजाब और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, जिसमें कीमत के तयन का जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी। ब्रायलर गोश्त की कीमत 582 रुपये किलो की सतह पर बरकरार है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 374, परचून रेट 388 रुपये किलो हो गया है। अंडों की कीमत में 2 रुपये का इजाफा 280 रुपये दर्जन हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी है। ब्रायलर गोश्त की कीमत 582 रुपये किलो की सतह पर बरकरार है, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 374, परचून रेट 388 रुपये किलो हो गया है। अंडों की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ है, 280 रुपये दर्जन हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत 582 रुपये किलो की सतह पर बरकरार है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 374, परचून रेट 388 रुपये किलो हो गया है। अंडों की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ है और 280 रुपये दर्जन हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत 582 रुपये की सतह पर बरकरार है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने कालाबाग डैम बनाने का मुतालबा कर दिया है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद कहते हैं किसानों को खाद माफिया ने लूट लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट पे। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन ने कहा कि सैलाब से बचाव सिर्फ कालाबाग डैम ही से मुमकिन है। अगर किसी को मसला है तो इसका नाम खुशहाल डैम रख दिया जाए। इस डैम से सैलाबों से भी बचाव है और सस्ती बिजली भी मिलेगी। कपास और मकई खसारे में जा रही है। अगर आपने इस मुल्क की तरक्की करनी है तो आपको खुशहाली डैम, कालाबाग डैम बनाना पड़ेगा। कालाबाग डैम, उस पर अगर आपको चिड़ है तो उसका नाम खुशहाली डैम रख लें। किसान इत्तेहाद के सरबराह ने कहा कि हम जल्द लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान से रैली का आगाज करेंगे। आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करेंगे। उन्हें बताएंगे कि किस तरह खाद माफिया किसानों को लूट रहा है। खालिद हुसैन ने मकई की इजाफी फसल को बरामद करने का मुतालबा भी किया।
पाक सुजुकी की कंपनी ने 16 रोज के लिए मोटरसाइकिल प्लांट बंद कर दिया है। फैसला खाम माल में कमी की वजह से किया गया है। डीलर्स कहते हैं कि प्लांट बंद होने से मोटरसाइकिल की सप्लाई मुतासिर होगी और कीमतें मजीद बढ़ेंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाक सुजुकी के मोटरसाइकिल प्लांट 31 जुलाई से 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। तहम ऑटोमोबाइल प्लांट ऑपरेट जारी रहेगा। खाम माल की अदम दस्तयाबी के बायस मोटरसाइकिल कंपनियों को पैदावारी मसाइल का सामना है। डीलर्स का सख्त रद्द-ए-अमल, कहते हैं मोटरसाइकिल पब्लिक सवारी है जो पहले ही बहुत महंगी है। प्लांट बंद होने से कीमतें मजीद बढ़ेंगी। सुजुकी वालों की जो मोटरसाइकिल है वो मेरे ख्याल से 3 लाख से ऊपर से शुरू होती है और आम बंदे के पास 3 लाख किधर है। यहाँ पर तो हर कस्टमर के पास कोई आते हैं, हम सारा दिन बैठे रहते हैं, लो जी 50,000 60,000 हद 80,000 रुपये तक होती है। जहाँ पे डबल कीमत हो गई अब, पहले 30 थी अब वो 80 90। चाइना की गाड़ी जो सी है वो 1 लाख से ऊपर पहुँच गई है। दूसरी जानिब खरीदार भी परेशान हो गए। कहते हैं अवामी समझी जाने वाली मोटरसाइकिल अब अवाम की सवारी नहीं रही। हुकूमत भी बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है। आस्ता आस्ता सारे प्लांट बंद हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जा रही है इस वजह करके सारे प्लांट बंद हो जाने हैं। अवाम की तरफ देख नहीं है, बाकी चीज़ें बंद हो रही हैं। हर चीज़ जो लेने चल जाओ वो मिलती नहीं है। सुजुकी की जो है ना, ये तो यहाँ की प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे बंद हो चुकी है। इस वजह से जो ना बाहर से अगर आएगी तो वो बहुत महंगी होगी, सारी बात अफोर्डेबल नहीं होगी। यहाँ पे पाकिस्तान में बनेगी तो वो पाकिस्तान की जो यहाँ की है तो वो तो सारी बात है सस्ती मिलेगी आवाम को। ऑटो सेक्टर की दरामदात पर आयद पाबंदियों की वजह से कंपनी को खाम माल की किल्लत का सामना है, जिससे कंपनियों को शदीद माली और पैदावारी मुश्किलात दरपेश हैं। मरीज फौरी अद्वियात को तरस गए। लाहौर के 6 तदरीसी हस्पतालों में दोहरा मयार। गरीब मरीज मेडिकल स्टोर से अद्वियात लेने पर मजबूर, जबकि प्रोटोकॉल मरीजों को 100% फौरी अद्वियात मिल रही हैं। देखिए सजाद हुसैन की रिपोर्ट। हेल्थ कार्ड गैरफाल, दवाएं नायाब, मुफ्त दवाओं की अदम दस्तयाबी, मरीज रुल गए। लाहौर के 6 तदरीसी अस्पतालों में अद्वियात 100% फ्री मिलना दुश्वार, मगर दूसरी जानिब प्रोटोकॉल पर दाखिल मरीजों की तमाम अद्वियात फ्री मिल रही हैं। नाइंसाफी की दुहाई देते मरीज और उनके लवाहिकीन मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। हेल्थ कार्ड के बावजूद दवाई बाहर से मंगवा रहे हैं, वो कह रहे हैं बाहर से लेके आए, हमारे पास नहीं है। 2-3 रोज हो गए आए हुए, जो चीज़ होती है वो कहते हैं जी ये ले आए, वो हम ले आते हैं। लाहौर के 6 अस्पतालों शेख ज़ैद, जिन्ना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल, म्यो अस्पताल और लाहौर के जनरल अस्पताल में हेल्थ कार्ड गैरफाल हैं। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर सरकारी हस्पतालों की बेहतरी का प्लान तैयार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत अहले मरीजों को सरकारी हस्पतालों में मियारी तिबी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्कद हुआ। सेक्रेटरी सेहत अली जान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया 28 बड़े हस्पतालों की तमीर व मुरम्मत, तिबी आलात की फराहमी के लिए 15 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तमाम ज़िलाई और तहसील हस्पतालों में तरक्याती काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाहौर के सरकारी हस्पतालों की पार्किंग का इंतज़ाम पार्किंग कंपनी के हवाले करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि सहूलियात का मेयार ऐसा हो कि मरीज़ सरकारी हस्पतालों से इलाज करवाने को तरजीह दें। डिप्टी कमिश्नर इस्लाम में सेहत और तालीम की सहूलत बेहतर बनाने की पर खुसूसी तवज्जो दें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी केस की तहकीकात जारी हैं। वाक़े में मुलविस किसी मुलजिम को नहीं छोड़ा जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की नज़रिया पाकिस्तान रोड मंसूबे का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा पूरे पंजाब में एंटी हैरेसमेंट सेल बना रहे हैं। लाहौर में क्राइम की शरह में वाज़े कमी आई है। अगला मिशन थाना कल्चर में बेहतरी लाना है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी जो उसमें इन्वॉल्व है वो स्पेयर नहीं होगा, ये तो 100% गारंटी है। चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जुडिशल कमीशन की। हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे और उसमें जो इन्वॉल्व है वो इंशाल्लाह ताला ऑलरेडी पुलिस के उसमें है, बट जहाँ पे थोड़ी बहुत खामियां हैं, जहाँ पे किस के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी है, कितने लोग, इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व भी नहीं हैं, लोग भी बहुत थोड़े इन्वॉल्व हैं। सूबाई खातून सेक्रेटरी जो हैं वो हेड करेंगी एक सेल, एंटी हैरेसमेंट सेल। उसके बाद हर यूनिवर्सिटी में एक खातून प्रोफेसर इसी तरह का सेल बनेगा जो उनको रिपोर्ट करेगा। और लेकिन इसका ज़रूर कोई ना कोई सिस्टम बनना चाहिए कि अगर किसी को कोई इस तरह की हैरेसमेंट होती है तो कम से कम वो कहीं पे जाके तो बता सके। ऑलरेडी क्राइम में कमी आई है, ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कमी आई है, लेकिन कमी आई है। इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आपको और कमी नजर आएगी।
बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल में की छानबीन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। शहरी ने अदालती तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। शहरी मशकूक हुसैन ने नदीम सरवद एडवोकेट के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की, जिसमें निशानदही की गई कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तालीमी दरसगाह है, जहाँ मंशियात और नाजेबा वीडियोज़ के स्कैंडल में यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। दरख्वास्त पे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मामला इंतहाई एहसास है और इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई कि इस मामले की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करके अदालत खुद तहकीकात की निगरानी करेगी। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत में इजाफा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर को मुंतखब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में लंदन वापस लौटेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर को मुंतखब कर लिया गया, जबकि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर दीगर पार्टियों के अफराद की बड़े पैमाने पर नून लीग में शमूलियत के लिए फहरिस्तें तैयार। नून लीग 30% नए चेहरों के साथ जनरल इंतखाबात में जाएगी। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 4 रोज़ की तौसी कर दी। एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में भी 7 रोज़ की तौसी, खतीजा शॉ और आलिया हमजा को 14 अगस्त को पेश करने का हुक्म दिया। देखिए नुमान नूर की रिपोर्ट। सानहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अब्बर गुल खान ने समाअत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड की मियाद खत्म होने पर पेश किया गया। अदालत ने 4 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ शेरपाव पुल पर इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का मुकदमा है। अदालत ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी को 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। एजाज चौधरी और दीगर के खिलाफ 9 मई को थाना शादमान को जलाने और तोड़फोड़ का केस है। इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खतीजा शाह समेत दीगर मुलजिमान का जल्द चलान पेश करने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में 68 मुलजिमान के केस पर समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग स्कीमों से मुतल्लिक शिकायत के इजाले के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी निजी हाउसिंग स्कीमों के हवाले से मौजूद कवानीन के मुताबिक शिकायत के फैसले करेगी। देखें मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। निजी हाउसिंग स्कीमों से मुतल्लिक शिकायत के अजाले के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान के हुक्म पर पंजाब हुकूमत की जानिब से कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी के अरकान में DG LDA, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर समेत दीगर मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटी निजी हाउसिंग स्कीमों की मैनेजमेंट से मुतल्लिक मामलात का जायजा लेगी। कमेटी निजी हाउसिंग स्कीमों से मुतल्लिक शिकायत और दरखास्तें वसूल और फैसले करेगी। शहरियों को अपनी शिकायत और दरखास्तें LDA 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए जमा करवाने की हदायत। LDA की हदूद से बाहर के शहरी अपनी शिकायत मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवा सकेंगे। जस्टिस शाहिद जमील खान की अदालत में ऐसे तमाम ज़ेर समाअत मुकदमात के फ्री कैन कमेटी के रूबरू पेश होंगे। कमेटी फ्री कैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करेगी। कमेटी शिकायत के अजाले, फैसलों और हदायत से मुतल्लिक समाही रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार को भी इरसाल करेगी। कमेटी की इजाजत के बगैर कोई भी निजी हाउसिंग स्कीम अपने रिहायशी या दरखास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद अपने ओहदे से रिटायर हो गए। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जस्टिस सफदर सलीम शाहिद को गुलदस्ता देकर रुखसत किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद के एजाज में अदालत आलिया में सादा मगर पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस मुसम्मल अख्तर शबीर, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस राहील कामरान शेख और जस्टिस समजर रफीक भी शरीक हुए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट इरफान अहमद सईद, DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अमीर मोहम्मद खान, सेशन जज ह्यूमन रिसोर्स अब्दुल रशीद आबद, अफसरान और स्टाफ मेंबर्स भी अलविदाई तकरीब में मौजूद थे। रिटायर्ड होने वाले फाजिल जज ने तमाम जजेस, अफसरान और स्टाफ से फर्दन मुलाकात की। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने जस्टिस सफदर सलीम शाहिद को गुलदस्ता देकर रुखसत किया। लाहौर हाई कोर्ट में मौजूदा जजेस की तादाद 40 है, जबकि खाली असामियों की तादाद 20 हो गई है। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड का मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताज का ऐलान। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 74.57% रहा। पहली तीनों पोजीशन प्राइवेट उम्मीदवार ले गए।
میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان، لاہور سمیت پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز نے نتائج سنا دیے۔ اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن آغا علی عباس کی چیئرمین لاہور بورڈ مرزا حبیب کے ساتھ پریس کانفرنس۔ لاہور بورڈ میں کامیابی کا تناسب 74.57% رہا۔ 9 بورڈز میں سے لاہور کا 5واں نمبر رہا۔ ڈی جی خان میں سب سے زیادہ کامیابی کا تناسب 86.37% رہا۔ لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب لڑکوں سے بہتر رہا۔ پنجاب بھر میں 84% سے زیادہ لڑکیاں پاس ہوئیں، 76% لڑکے کامیاب ہوئے۔ اس میں جو ہائیسٹ سکسیس ریٹ ہے وہ ڈی جی خان بورڈ کا ہے، اور دیگر بورڈز بھی بھاولپور 82% پہ، ڈی جی خان 86 پہ، فیصل آباد 81 پہ، گجرانوالہ 80 پہ، لاہور 74 پہ، ملتان 85 پہ، راولپنڈی 77 پہ، سائیوال 78 اور سرگودا 82 پہ۔ لاہور بورڈ میں پہلی تینوں پوزیشنز پرائیویٹ امیدواروں نے سمیٹیں۔ طوبہ اعظم نے سب سے زیادہ 1091 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ محمد عبداللہ 1090 نمبروں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ ہادیہ نور 1099 نمبروں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہیں۔ 17.47% بچوں نے لاہور بورڈ میں A+ گریڈ حاصل کیا ہے، 15.47% بچوں نے A گریڈ حاصل کیا ہے، 21.46 بچوں نے B گریڈ حاصل کیا ہے، اور 24.73% بچوں نے C گریڈ حاصل کیا ہے۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام امتحانات میں 2,30,915 امیدوار شریک ہوئے، جن میں سے 1,72,204 امیدوار کامیاب ہوئے۔ کیمرہ مین عمیر فضل کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ لاہور بورڈ نے میٹرک کے سالانہ امتحانات 2023 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات 2023 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ لاہور بورڈ میں کامیابی کا تناسب 74% سے زائد رہا۔ لڑکیاں پھر بازی لے گئیں۔ 1100 میں سے 1091 نمبر لے کر پرائیویٹ امیدوار طوبہ اعظم نے اول پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح پرائیویٹ امیدوار محمد عبداللہ 1090 نمبر لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ ہادیہ نور نے 1089 نمبر لے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ہونہار طالبہ طوبہ اعظم اور دوسری پوزیشن سمیٹنے والے عبداللہ نے کامیابی کو اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا ثمر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، انہوں نے، اور سیکنڈلی میرے اسکول اور اکیڈمی کے ٹیچرز جو اسٹرگل انہوں نے مجھ پہ کی، دین میرے پیرنٹس کی سپورٹ اور بہت سے لوگوں کی دعائیں تھیں میرے ساتھ۔ والدین کی دعائیں ہیں، ٹیچرز کی دعائیں، ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کی ہے، اور میری اپنی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی مجھے کامیاب کرتا رہے۔ والدین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بچوں کی پڑھائی میں لگن اور انت تک محنت کا اعتراف کیا۔ بہت خوش ہوں اور بیان نہیں کر سکتی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور میری بچی ماشاءاللہ محنت بھی، اس نے بہت دن رات محنت کی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس نے بہت دن رات پڑھ رہی تھی، میں تو اسے منع کرتا رہتا، نہ اتنا نہ پڑھا کرو، نہ پڑھا کرو، لیکن اللہ کا شکر ہے۔ پروف کر کے دکھایا ہے کہ اگر آپ ٹیچرز کو فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ترقی ضرور کریں گے۔ ویسے بھی یہ بہت اوبیڈینٹ بچہ ہے، اور شروع سے یہ ماشاءاللہ ٹاپر ہے اسکول کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اتنے نمبر لے کے آیا، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ ساری ایفرٹس جو ہے نا وہ بچے کی تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کی بھی ایفرٹس ہے۔ سائنس گروپ میں 87.08% لڑکیاں کامیاب، لڑکوں کی کامیابی کا تناسب 74.78% رہا۔ آرٹس گروپ میں بھی طالبات 62.20% نمبروں کے ساتھ سرفہرست۔ آرٹس گروپ میں صرف 36.8% لڑکے پاس ہوئے۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات میں 2,30,915 امیدواروں نے شرکت کی، جن میں سے 1,72,204 طلبہ نے کامیابی حاصل کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔